Hello everyone. We'll continue with chemical kinetics. Today we are doing integrated rate equation for zero order reaction. Like we did integrated rate equation for first order reaction, we did small derivation. Same type of derivation we have to do for zero order reaction. Okay. Now how we will start with, consider a zero order reaction. A gives you product. Now when you write rate law for the reaction for zero order, we say rate is proportional to A raised to 0. Now when you remove proportionality sign, we get a constant. Now A raised to 0 is 1. Now how do we express rate of reaction? dA by dt. So rate of reaction is expressed as minus dA by dt equals to K. A raised to 0 is 1. So we get only K out here. Now we rearrange this equation as minus dA equals to K. Take this dt out here. So we'll get minus dA equals to K dt. Let this be equation 1. I'll repeat, like first order reaction, we are deriving an integrated rate equation for zero order reaction. So question is asked, derive an integrated rate expression for zero order reaction. Consider a zero order reaction. A gives you product. Now according to rate law, rate is proportional to A raised to 0 because the order is 0. Now when you remove proportionality sign, we get a constant that is called rate constant. The rate of reaction is expressed as minus dA by dt equals to K because A raised to 0 is 1. Now take this dt on the opposite side. So we get minus dA equals to K dt. Let this be equation 1. Now we assume when time is 0, the concentration of reactant is A0. When time is t, after time t, let the concentration of reactant left is AT. Now similarly, we'll integrate out here also. So we'll integrate equation 1 by putting this limits. So here we write integrating equation 1 by putting above limits. Here we write minus sign outside integration of dA. K constant outside integration of dt. Now can anybody tell me what is integration of dA? Yes, what will be the answer of integration of dA? A. So A. A. Okay. And what will be integration of dt? So T. T. Very good. So your integration of square bracket dA is only A. Here we put limits A0 to AT, and here the limits will be 0 to T. Now integration of dA is only A. Okay. And integration of dt is only T. But here these limits we have to continue. So here the limits will be A0 to AT, and here the limits will be 0 to T. Now instead of A, we'll put this limit, final minus initial. So in bracket we write AT minus A0. Okay, this minus sign is outside. Here we write K outside, and here the limit will be T minus 0. So instead of dt, we put T minus 0. And here only T will come, not dt. Okay, integration of dt is only T. Don't write dt, write only T. Now we put limit T minus 0. So answer will be T minus 0 is T only. Now when you open up the bracket, AT will become minus and A0 will become plus. Here K into T will give you only KT. Now express in the terms of K. So K is equals to A0 minus AT upon T. Now this is integrated rate equation for zero order reaction. Okay, I'll repeat the entire derivation once again. So we are doing integrated rate equation for zero order reaction. Now consider a zero order reaction. A gives you product. According to rate law, rate is proportional to A raised to 0.
Now when you remove proportionality sign, we get a constant called rate constant. The rate of reaction is written as minus dA by dt equals to K, because A raised to 0 is 1. Now take dt on the other side. So we get minus dA equals to K dt. Now assume when time is 0, concentration is A0. When time is t, the concentration of reactant left is AT. So we integrate this equation 1 by putting these limits. Integrating equation 1 by putting above limits. Here integration of dn, here integration of dt. Here the limit is A0 to AT, and here the limits are 0 to t. Integration of dA, answer is only square bracket A, and integration of dt, answer should be only t. Don't write d out here. Now the limits continue. A0 to AT, here 0 to t. Now instead of A, we put AT minus A0. And here instead of t, we put t minus 0. When you open up the bracket, this will become plus. And here only kt will be left. Now write in terms of k. So we get A0 minus AT upon t. This is an integrated equation for zero order reaction. Can everybody copy down this once? Very important. This comes for 2 marks. Derive an expression, integrated equation for zero order reaction. Come on, write it down once. I'll give you 2 minutes to copy. Here instead of dt, just write t. Don't write dt.
Everybody finish copying? Now we'll do half-life for zero order reaction. So we have to derive an expression for half-life for zero order reaction. Okay. I'll change the slide now. Okay, now what is half-life? Again, same. Half-life is the time required for the reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value. Now we have to derive an expression for half-life for zero order reaction. So we say, we know K is equals to A0 minus AT upon T. This is integrated rate equation for zero order reaction. Just now we derived. Now when time is zero, the concentration is A0. Now when time is half-life, the concentration left will be half of original. So A0 by 2. Now we'll substitute here in this equation. So instead of T, we write T half. And instead of AT, we'll write A0 by 2. Now here it is 1 A0 and here it is half A0. 1 minus half will be half. So A0 by 2 will be left. Here it is 1 A0 minus half A0. So half A0 is left. A0 by 2 is left. Take T half on the top and K down. So we get T half equals to A0 by 2K. Now this is expression for half-life for zero order reaction. A small derivation. I'll repeat. Derive an expression for half-life for zero order reaction. K is equals to A0 minus AT upon T. Now when time is zero, the concentration of reactant is A0. When time is T half, the concentration left of the reactant is half of original. So A0 by 2. Now instead of T, we substitute T half. And instead of AT, we'll write A0 by 2. So here it is 1 A0 and here it is half A0. 1 minus half is half. So we get A0 by 2. K, take T half on the other side and K here below down. So we get T half equals to A0 by 2K. Come on, copy down this small derivation for half-life for zero order reaction. We don't have numericals on this part. Okay, only theory, these two derivations will come. And NEET JEE, they can ask you simple sums on these two derivations or these two formulas. Half-life for zero order and integrated rate equation for zero order. But here in HSC, we don't have any numericals on such. Okay, done up till here. Okay, further now. We'll do characteristic of zero order reaction. So we have to draw
a graph for zero order reaction how we did for first order. Now first one, the differential rate equation was zero order reaction. The rate is independent of concentration. Okay, so here dA by dt equals to K. Now we plot a graph of rate against the initial concentration of reactant or concentration of reactant. What type of graph will get here? अगर हमने रेट और concentration of reactant का ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा मिलेगा जीरो ऑर्डर के लिए? Parallel. हाँ, parallel to x axis, because your rate of reaction is independent of concentration of reactant. जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है पर उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी. मतलब जो स्पीड से रिएक्शन हो रहा है वही स्पीड से होगा. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने के बाद स्पीड नहीं चेंज होती है. सो we'll get a graph like this. Okay, straight line parallel to x-axis. Now integrated rate equation for zero order reaction is Ka0 minus At upon T. Unit of rate constant for zero order reaction is molar per second or mole per dm cube per second. Then rearranging this integrated rate equation, अगर इसको rearrange करोगे तो ऐसा मिलेगा At equals to A0 minus Kt, which is in the equation of straight line y is equals to c plus mx. अभी y कोऑर्डिनेट पे क्या प्लॉट करोगे और x कोऑर्डिनेट पे क्या प्लॉट करोगे? y एक्सिस और x एक्सिस पे क्या प्लॉट करूं? Y पे 80. हाँ, y पे 80 और x पे T this time. ओनली t. मैंने बोला ना वेरिएबल को कंपेयर करो. ये y है, ये c है, ये m है और ये x है. तो y कोऑर्डिनेट पे सिर्फ 80 प्लॉट करेंगे. ओके, और x कोऑर्डिनेट पे t प्लॉट करेंगे. तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ विल गेट हियर? A slope going downwards. हाँ, स्लोप गोइंग डाउनवर्ड्स. याद है ना लास्ट क्लास में कराया था. यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, इसलिए विल गेट अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बट गोइंग डाउनवर्ड लाइक दैट. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप हियर? So minus K. Minus k. Very good. And what will be the intercept here out here? A0. हाँ, A0 is an intercept. ठीक है ना? तो ऐसे हम लोग log 80 बाय t का ग्राफ प्लॉट किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और यहाँ पे A0 अगेंस्ट t का ग्राफ है. और देखो ग्राफ में क्लियरली समझ आता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होते जाएगा, इसलिए ग्राफ डाउनवर्ड है. जब टाइम जीरो है तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन A0 है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, दैट इज माइनस के. ओके, और इंटरसेप्ट A0 है. नाउ हाफ लाइफ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ विल गेट हियर? यहाँ पे हाफ लाइफ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, सो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ विल गेट? यस, So passing through. हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 ग्राम रिएक्टेंट को 10 ग्राम होने के लिए अगर 20 मिनट लग रहे हैं तो 10 ग्राम को 5 ग्राम होने के लिए कितना मिनट लगेगा? I'll repeat. 20 minutes. 20 gram reactant to convert to 10 gram, it takes 20 minutes. तो 10 to 5 होने के लिए कितना मिनट्स लगेगा? 10 मिनट्स. यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट नहीं है, कम होते जाएगा. 20 ग्राम्स था तो 20 मिनट लगा, 10 ग्राम्स है तो 10 मिनट्स लगेगा. अभी 5 ग्राम्स है, उसका 2.5 होने के लिए 5 मिनट्स लगेगा. समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे टाइम हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. अभी एक और एग्जांपल देता हूँ. 100 ग्राम रिएक्टेंट को 50 ग्राम होने के लिए 10 मिनट्स लग रहा है, तो 50 ग्राम रिएक्टेंट को 25 ग्राम होने के लिए कितना मिनट लगेगा?
100 to 50 के लिए 10 लग रहा है, तो 50 to 25 के लिए कितना लगेगा? कम ऑन, 5. 5 कम होते जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, यहाँ पे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा, तो टाइम भी कम होते जाएगा, हाफ लाइफ भी कम होती जाएगी. सो यहाँ पे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर में इट इज इंडिपेंडेंट, बट जीरो ऑर्डर में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन. जबकि हम सेकेंड ऑर्डर करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. वो नीट जेई बच्चों को थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा, फिलहाल नहीं चाहिए. ओके, बट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इज इट क्लियर? आई होप दिस कैरेक्टरिस्टिक आर क्लियर. Now we'll go to one theory, that is collision theory. अभी देखो collision theory क्या है. collision theory के हिसाब से इसमें ना हम लोग को 4 पॉइंट करने हैं, 4 पॉइंट करने हैं, और ये 3 से 4 मार्क की थियोरी आती है. थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसमें. अभी इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं. पहला पॉइंट है collision between the reactant molecule. अभी ये थ्योरी के हिसाब से जितना ज्यादा कोलिजन हो रहा है उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. ओके, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा. दैट इज ट्रू, बट रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. अगर रेट ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो सारे रिएक्शन 10⁻⁹ सेकेंड्स में ही खत्म हो जाते. देखो यहाँ पे लिखा है the rate of reaction is equals to rate of collision, but here in gaseous reaction many power of 10 the rate of reaction is number of collision is many power of 10 compared to the observed rate. okay, मतलब यहाँ पे collision इतने ज्यादा होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सारे रिएक्शन, मतलब ये गैसियस रिएक्शन तो 10⁻⁹ सेकेंड्स में ही खत्म हो जाते इतनी जल्दी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. मतलब कोलिजन होना जरूरी है, बट रेट ऑफ रिएक्शन एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन के साथ साथ बढ़ेगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. अभी ऐसा क्यों? उसका रीजन है एक्टिवेशन एनर्जी. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ओके, तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उनके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए विच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ if the colliding molecule possess kinetic energy equal or greater than activation energy, then only that collisions will be fruitful. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? देखो ये ग्राफ है, अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट को ये ट्रांजिशन स्टेट तक, इन बिटवीन स्टेज तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो रिएक्टेंट टू द इन बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट, the energy required for the reactant to reach this stage is called energy of activation. तो reactant molecule की kinetic energy या तो उसके equal या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए. So reactant should have, those reactant have kinetic energy equal or greater than activation energy can only get converted to product. मतलब ऐसे बहुत सारे collisions होंगे जो fruitful नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल टकराए और वापस चले गए, कुछ नहीं हुआ. वही मॉलिक्यूल जिनकी जब वो टकराते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी ये एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या तो उनके बराबर की है तो ही वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे दो फैक्टर हमने लर्न किए. पहला फैक्टर है कोलिजन्स बढ़ने चाहिए, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा. सेकेंड फैक्टर है एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी या तो उसके बराबर होगी, वही कोलिजन्स, वही मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहे हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अभी तीसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन. ओके, तीसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन. अभी ओरिएंटेशन क्या होता है? अभी जब मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, व्हेन दे आर कोलाइडिंग,
they should have a proper orientation. See यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, A react with CB to form AB and C. अगर ये रिएक्शन होना है, अभी देखो जब A मॉलिक्यूल CB से टकराएगा, पर A और C जब सामने सामने आएंगे तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. यहाँ पे A जब C से टकराएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, जब A B से टकराएगा तो रिएक्शन होगा, मतलब AB का बॉन्ड बन जाएगा और C का बॉन्ड टूट जाएगा. तो ये रिएक्शन फ्रूटफुल हुआ, ये कोलिजन फ्रूटफुल हुआ, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए. तो अगर कोलिजन हो रहे, मॉलिक्यूल टकरा रहे आपस में, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी. मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, पर उनका अगर ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो वो कोलिजन वेस्ट हो गया. तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन वेस्ट हो जाते हैं, या तो उनमें एक्टिवेशन एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं है, या तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है. तो इसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, नंबर ऑफ कोलिजन होने के बाद भी. और चौथा फैक्टर, लास्ट फैक्टर यहाँ पे रहे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. अब ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर समझने के लिए फिर से रिएक्शन कंसीडर करो, A plus CB gives you AB plus C. अभी यहाँ पे जब A यहाँ पे अटैक करेगा तो जो B पे अटैक करेगा तो एक इन बिटवीन स्टेज बनता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ऑल थ्री एटम्स आर वीकली कनेक्टेड. ये हमने SN1 मैकेनिज्म में कैसे किया है कि ब्रोमीन लीविंग ग्रुप है, OH अटैकिंग ग्रुप है, तो OH भी है और ब्रोमीन भी है, तो कार्बन को दोनों को पकड़ के रखना है. तो ये जो इन बिटवीन स्टेज होता है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बुलाते हैं. और मैंने तभी भी समझाया था कि ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी, अनस्टेबल, एक्साइटेड स्टेट होता है और उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म होता है. अभी जो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में ये B के पास उतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, अब ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर यहाँ पे डेवलप होता है, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब इस तरफ आएगा. अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा नहीं है तो रिएक्टेंट वापस से रिएक्टेंट में ही रह जाएगा कन्वर्ट होके, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो ये जो यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको क्रॉस करने के लिए पहले तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो ये स्टेज तक रीच करे. फिर ये स्टेज में उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है तो रिएक्टेंट में ही बना रह जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. तो ये पॉइंट को बुलाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. Thus, the reactant molecule transform to product only if they possess energy equal or greater than such an energy of activation. Abhi energy of activation is given by the formula F is equals to E raised to minus A upon RT. Okay, this is fraction of molecule having activation energy. तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की इतनी एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक्सप्रेशन अरेनियस ने दिया है और इसको हम बाद में अरेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा. तो ये 4 पॉइंट है, फिर से एक बार सारे रिपीट करता हूँ. कोलिजन थ्योरी में क्या क्या लिखना है, मैं जो व्हाट्सएप पे नोट्स भेजूंगा ना उसमें थोड़ा पुराना स्टाइल में है, पर बेटर है कि तुम लोग यहाँ से कॉपी करना. ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है, नई टेक्स्ट बुक है ना, उसमें ये सब दिया हुआ है. So better you all copy this collision theory from the textbook itself. It is given very simple form and you will understand very easily. I'll repeat all the 4 points which you have to write for collision theory. Collision theory का पहला पॉइंट है collision between the reactant molecules. अब ये पॉइंट में लिखना है कि rate of reaction increases with increase in number of collision, but rate of reaction is not directly proportional to number of collision. क्योंकि जो number of collision होते हैं वो 10 to the power, बहुत ज्यादा पावर, 10 to 20, 10 raised to 30, इतने ज्यादा collision per cubic centimeter per second.
1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 सेकेंड में 10⁻30 कोलिजन्स हो जाते हैं। तुमको समझ आ रहा है मैं कितना बोल रहा हूँ? 10⁻30 कोलिजन्स इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड। इतने ज्यादा कोलिजन होते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो रिएक्शन तो 10⁻⁻9 सेकेंड्स में ही खत्म हो जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे पहले लिखना है तो कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन। बट बहुत सारे गैसियस रिएक्शन में नंबर ऑफ कोलिजन इज फार मोर, many power of 10 compared to the rate, and therefore rate of reaction and number of collisions are not directly proportional. फिर सेकेंड रीजन हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वरना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? रिएक्टेंट टू रीच द ट्रांजिशन स्टेज, इन बिटवीन स्टेज, यहां तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है रिएक्टेंट को, वो एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहां से आती है? तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल से। हम इनिशियली कोई भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, हम शुरू में थोड़ा उसको वार्म करते हैं, रिएक्टेंट को एक्टिवेट करते हैं, तो वो जो एक्टिवेट करते हैं, हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी थोड़ा बहुत हीटिंग जरूरी होता है इनिशियली, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, पर क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है, वो एनर्जी रिलीज करता जाता है, तो बाद में हीटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो विद इन एनर्जी क्रिएट करेगा और खुद ब खुद सेल्फ एक्सिलरेटिंग, सेल्फ एक्टिवेट होता जाता है। पर दोनों ही रिएक्शन में थोड़ी पहले एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और वो सारे रिएक्शन में ज्यादातर चाहिए। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी उतनी होनी चाहिए, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या तो उससे ज्यादा रहेगी, तो और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। तीसरा फैक्टर है ओरिएंटेशन। जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल टकराते हैं, जैसे ए सीबी से टकरा रहा है, जैसे अभी तुम समझ लो यही, जैसे ये OH है और ये मिथाइल ब्रोमाइड है, अभी OH कार्बन से टकराना चाहिए, तो ई कार्बन और OH का बॉन्ड बनेगा और कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। तो ओरिएंटेशन जब तक सही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ए सी से टकराया तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, पर अगर ए बी से टकराया तो रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी फॉर्म्ड एंड ए एंड सी विल बी ब्रोकन। तो जब तक ओरिएंटेशन सही नहीं होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये तीन फैक्टर हुए, पहले तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होना चाहिए, दूसरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होनी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होनी चाहिए या तो बराबर की होनी चाहिए, तीसरा ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। अभी चौथा फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अभी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर में फिर से हम ये रिएक्शन कंसीडर करते हैं। इसमें बोला मैंने कि ऐसा स्टेज आएगा जब तीनों एटम वीकली कनेक्टेड होंगे, मतलब बी और सी का बॉन्ड टूटने वाला है और ए और बी का बॉन्ड बनने वाला है। जैसे हम लोग ने मिथाइल ब्रोमाइड और KOH के रिएक्शन में देखा था, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटने वाला था और कार्बन OH का बॉन्ड बनने वाला है। उस वक्त ये मॉलिक्यूल हाई एनर्जी अनस्टेबल और एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराना इतना जोरदार होना चाहिए कि उस वक्त वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब तक ये मॉलिक्यूल ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करता है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो रिएक्शन होने के लिए चार फैक्टर जरूरी है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या तो उसके बराबर की होनी चाहिए, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, तो ही